Hello guys, in this lecture we solve Introduction to Data Science second internal solution. So let's start. First, first question या first section related to data cleaning. First question is when merging data set with different measurement system, ensuring between unit is crucial. तो ensuring compatibility between unit, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? Compatibility और consistency. Second question is in the data charging in what out? Garbage out. Stress that analyze quality depend on the input data. तो इसका आंसर क्या होगा? गार्बेज, क्योंकि क्लीनिंग इन गार्बेज आउट. थर्ड क्वेश्चन है हमारा डैश आर सिमेट्रिक सिस्टमैटिक प्रॉब्लम इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द डेटा क्लीनिंग प्रोसेस डेट कैन बी करेक्ट. कौन सी ऐसी प्रोसेस है जो कि डेटा क्लीनिंग के समय करेक्ट होती है? तो वो होती है आर्टिफैक्ट्स. ठीक है. फोर्थ क्वेश्चन irrecoverable information loss during acquiescing example power outage as n. तो उसको क्या बोलते हैं? हम आउटलायर बोलते हैं, क्योंकि वो इनरिकवेबल इंफॉर्मेशन है ना, जिससे कि हमारे डेटा का लॉस हो सकता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? आउटलायर. क्वेश्चन नंबर 5 रिप्लेसिंग मिसिंग डेटा विद द मीन ऑफ एग्जिस्टिंग वैल्यू इज कॉल्ड मीन वैल्यू. ओके, मीन वैल्यू इंपोर्टेशन. नेक्स्ट स्लाइड. Question number 6 filling missing value via linear regression or cover fitting is known as interpolation or regression imputation. 7 question always preserve both the data and the clean data set. उसको हम क्या बोलते हैं? रो और ओरिजिनल डेटा. Question number 8 converting John Smith to Smith John is an example of the name standardization or normalization. ठीक है. Question number 9 है outliers detection is often used as a sanity check. Question number 10 है function like Unicode help remove inconsistency character during repair. तो first section is complete है. Second section is machine learning concept. Question number 11 transforming raw variable into more informative ones is called feature engineering. Question number 12 predicting a numerical value such as salary is an example of regression. Question number 13 है a model that first train data perfectly but fail on new data suffer. वो क्या होता है? ओवरफिटिंग या फिर हाई वेरिएंस. एक ऐसा मॉडल जो कि हमने पहले के डेटा से अच्छे से उसको ट्रेन कर लिया, लेकिन जब कोई सा नया डेटा आ रहा है तो वो उसके ऊपर बिल्कुल अच्छे से रन नहीं हो पा रहा है, तो वो क्या हो जाता है? ओवरफिटिंग. क्वेश्चन नंबर 14 ड्रॉप आउट द वेट पेनलाइज आर एग्जाम्पल ऑफ regularization method. Question number 15 training multiple diverse models to improve accuracy is known as learning. कौन सी लर्निंग बोलते हैं इसको? immense learning. Question number 16 a simple reference model for comparison is called a baseline model. इसका आंसर क्या हो जाएगा? baseline. Question number 17 independent earth charging data sample are described as किस तरह के डेटा में इसको डिस्क्राइब करते हैं? स्टैटिक डेटा में. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 18 पैरामीटर्स टर्न बिफोर ट्रेनिंग आर कॉल्ड हाइपर पैरामीटर्स. ठीक है, मतलब जो कि कॉल करने से पहले ही टर्न हो जाता है उसको हाइपर पैरामीटर्स कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 19 कंपेयरिंग टू वर्जन स्टैटिकली टू सी विच परफॉर्म बेटर इज टेस्टिंग. तो हाइपोथेसिस या फिर ए बाय बी को आप कंपेयर करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि बेटर कौन सा है. क्वेश्चन नंबर 20 नॉर्मलाइजेशन टिपिकली रीस्केल्स न्यूमेरिकल फीचर टू द रेंज. तो इसकी रेंज क्या होगी? -1 to 10, या फिर अगर अपन स्टेटमेंट डिफाइन करें तो 0 से 1. नाउ वी सॉल्व मशीन लर्निंग कॉन्सेप्ट. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज होगा मशीन लर्निंग कॉन्सेप्ट. वो अभी बच्चे मशीन लर्निंग. चलो पढ़ते हम. द डिफरेंस बिटवीन ट्रेन एंड टेस्ट परफॉर्मेंस मेजर्ड मॉडल इज कॉल्ड जनरलाइजेशन. 21 होगा बाइट्स सैम्पलिंग इन डेटा कलेक्शन कैन कॉज बाइट्स. बाइट्स जो बोलते हैं इसका आंसर ही क्वेश्चन में दिया है. 23 a model train once and not update further is a static model. ठीक है. 24 a model that continually retain with new data is dynamical model. 25 the loss function measuring divergence between predict and true probability is cross entropy. Now solve deep learning.
Question number 27. What is question number 27? Deep learning is a specialization subset of machine learning. Machine learning है उसके ऊपर ये अपन deep learning करते हैं. Question number 27. Neural network are universal dash of functions. तो ये क्या हो जाएगा? Approximators. 28. A network with more than one hidden layers is termed a deep neural network. DNN. ठीक है, यहाँ पे डीप आता है ओनली, NN तो इन्होंने लिख दिया है. क्वेश्चन नंबर 19. इस लेयर्स आउटपुट बिकम द नेक्स्ट लेयर्स इनपुट. इसका आउटपुट नेक्स्ट लेयर के लिए इनपुट होगा. फर्स्ट लेयर का आउटपुट नेक्स्ट लेयर के लिए इनपुट होगा. क्वेश्चन नंबर 13. CNNs आर मेनली यूज्ड फॉर इमेज क्लासिफिकेशन. नाउ नेक्स्ट 31. RNNs handle data with strong sequential dependency. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? Sequential. 32. LSTM is an improved version of a network. किस नेटवर्क का improved version है? Recurrent neural network का. 33. In a GAN, the second model act as a discriminator discussing real and fake data. इसका आंसर क्या हो जाएगा? Discriminator. Question number 34. Resume a pre-trained model for the relate task is called what learning? Transfer learning. Question number 35. The white part of the wide and deep model help specific exam. किस एग्जाम को सॉल्व करने के लिए करते हैं? तो ये होता है मेमोराइजेशन. मेमोराइज. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 13. The deep part capture more हाई लेवल फीचर. ये क्या करता है? हाई लेवल फीचर या एब्स्ट्रैक्ट फीचर को भी कैप्चर कर देता है डीप पार्ट. क्वेश्चन नंबर 37. लीनियर क्लासिफायर्स कंबाइन इनपुट एंड टू परफॉर्म प्रिडिक्ट. किस किसके? वेट एंड बाइट्स. जो लीनियर क्लासिफायर्स होते हैं वो वेट एंड बाइट्स के बीच में क्या इनपुट प्रिडिक्शन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 38. एक्टिवेशन फंक्शन इंट्रोड्यूस इनटू न्यूरल मॉडल. नॉन लीनियरिटी. क्वेश्चन नंबर 39. एडिंग न्यूरॉन्स और हिडन लेयर्स इंक्रीजिंग मॉडल. क्या करता है? ये कॉम्प्लेक्सिटी के लिए करते हैं. क्वेश्चन नंबर 40. ट्रांसफर लर्निंग लेवरेज फीचर्स लर्न फ्रॉम प्रायर टास्क. तो ये क्यों यूज किया जाता है अपन? जनरलाइजेशन के लिए या प्रीटेन के लिए. नाउ सॉल्व सेक्शन डी पाइथन डेटा स्ट्रक्चर. क्वेश्चन नंबर 41. लिस्ट आर ऑर्डर एंड मीनिंग दे कैन बी चेंज. लिस्ट क्या होती है? म्यूटेबल होती है. म्यूटेबल का मतलब उन्हें हम चेंज नहीं कर सकते, ना उनकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं. लिस्ट के अंदर जो भी वैल्यू है उन्हें अपन चेंज नहीं कर सकते. क्वेश्चन नंबर 42. टपल्स डिफरेंट फ्रॉम लिस्ट बिकॉज दे आर म्यूटेबल. अगर वो इनम्यूटेबल है तो टपल्स क्या है? म्यूटेबल. इसलिए तो डिफरेंस है. लिस्ट में अपन चेंज कर सकते हैं, लेकिन लिस्ट में अपन चेंजेस कर सकते हैं. यहाँ पे म्यूटेबल लिखा है, मीनिंग दे कैन बी चेंज. तो लिस्ट में अपन वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं, लेकिन टपल में अपन ऐसा कुछ नहीं कर सकते. तो वो क्या हो जाएगी? इनम्यूटेबल. म्यूटेबल का मतलब होता है किसी चेंज में चेंज करना. इम्यूटेबल का मतलब होता है नॉन चेंजेबल. बस. क्वेश्चन नंबर 43. डिक्शनरीज स्टोर डेटा एज की एंड वैल्यू पेयर. एक की होगी, एक वैल्यू होगी. जैसे की हो गई नेम और उसकी वैल्यू हो जाएगा नेम. नेम जैसे कि जो भी आपका नाम हो. एज हो गई, फिर उसकी एज उसकी वैल्यू हो जाएगी. एज एक की है, वैल्यू उसकी वैल्यू है ना. फिर 14 क्या होता है? सेट्स कंटेन यूनिक एलिमेंट. यूनिक एलिमेंट मतलब कि अगर आपके पास एक सेट है तो उसके अंदर हर एलिमेंट यूनिक होगा. 1 1 1 2 2 3 3 ऐसा नहीं हो सकता. 1 2 3 4 5 एवरी एलिमेंट इज यूनिक. 45. और DQ अलो फास्ट ऑपरेशन एट बोथ एंड्स. अगर DQ है, DQ यानी जिसके दो एंड्स हो, तो वो दोनों एंड से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है. क्वेश्चन नंबर 46. काउंटर्स इज अ सब क्लास ऑफ डिक्शनरी. काउंटर्स जो होते हैं वो डिक्शनरी के सब क्लास होते हैं. डेट टेलर्स अकरेंस. ठीक है. अब फ्रोजन सेट इज अ सेट डेट कैन बी इनम्यूटेबल. अब सेट क्या होते हैं? सेट म्यूटेबल होते हैं. सेट में हम चेंज कर सकते हैं, सेट की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो फ्रोजन सेट है, फ्रोजन सेट सेट का ही एक टाइप है, वो वैल्यू को चेंज नहीं कर सकता. वहां पर वैल्यूज चेंज नहीं कर सकते, तो वो क्या हो जाता है? इनम्यूटेबल हो जाता है. क्वेश्चन नंबर 48. द हीप मॉड्यूल इंप्लीमेंट अ प्रायोरिटी क्यू. क्वेश्चन नंबर 49. इन अ मैक्सिमम हीप ईच पेरेंट नोड्स वैल्यू इज अ देन इट्स चाइल्ड ग्रेटर देन और इक्वल देन. जो भी पेरेंट नोड की चाइल्ड की वैल्यू है वो ग्रेटर देन या फिर इक्वल होगी. क्वेश्चन नंबर 15. कन्वर्टिंग अ लिस्ट इनटू हीप ऑर्डर इज कॉल्ड हीपिफाई. अगर आपको लिस्ट को हीप में कन्वर्ट करना है तो उसको हीपिफाई बोलेंगे. सो वी सॉल्व सेकंड इंटरनल ऑफ डेटा साइंस. थैंक यू.